अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर का एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, हम लोग कन्वर्जन तक बताए थे। एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, हमेशा रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 12.19, क्वेश्चन नंबर 12.19 एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 12.19. Dear students, question is, an organic compound contains 69.77% carbon. An organic compound contains carbon 69.77%, hydrogen 11.63%, and rest oxygen. The molar mass of the compound is 86. It does not reduce tolerance reagent, but forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide and give positive iodoform test. On vigorous oxidation, it gives ethanoic acid and propanoic acid. Write the possible structure of the compound. Dear students, here data is given. At first, you have to find the molecular formula of the compound. In the given data, an organic compound contains carbon 69.77%, hydrogen 11.63%, and rest oxygen. Now we are going to find out the molecular formula of the compound. Since carbon, hydrogen, oxygen, here it is the element, percentage, atomic mass ratio, simple ratio, like that. Carbon 69.77%, hydrogen 11.63, and rest oxygen. What will be the percentage of oxygen in this case? 69.77 plus 11.63, दोनों को ऐड कर दो और 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा बताइए जल्दी। L 81.4 or 100 minus 81.4, that is 18.60. Here the percentage of oxygen is 18.60. ये आया ऑक्सीजन का परसेंटेज। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. Atomic mass ratio is obtained by dividing percentage by the atomic mass. (69.77) divided by 12. (5.81) ये हुआ, ये तो 11.63, ये होगा आपका 116.
ये आया आपका एटॉमिक मास रेशियो, दैट इज 5.81, 11.63 and 1.16. Now obtaining the simplest ratio, 5.81 divided by 1.16, 63 divided by 1.16 divided by 1.16 equal to 5, 10, 1. So the empirical formula of the compound will be C5H10O. So empirical formula is equal to C5H10O. ये निकल गया इस कंपाउंड का empirical formula. Any problem in this case? Anybody else? किसी कोई प्रॉब्लम भी है? नहीं. Now empirical formula mass that is 12 into 5, 1 into 10 plus 16. 86. And dear students, molecular mass of the compound is, that is 86 also. So here N is equal to molar mass divided by empirical formula mass. ये दोनों 86 है, 1 आ गया. So the empirical formula, molecular formula of the compound will be C5H10O. दोनों ही होता है. फॉर्मूला है molecular formula is equal to N into empirical formula 1 into C5H10O. ये निकल गया कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला C5H10O. दिस इज द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड. यहां तक की प्रॉब्लम तो बताइए किसी बच्चे को, हम रिपीट करेंगे इसको. Any problems, any doubts? If you have, you are free to ask any question. नहीं. नाउ अब हम आगे बढ़े बालक. नेक्स्ट पार्ट है, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट but forms an additional compound with sodium hydrogen sulfide and gives positive taste at the form test. It means the given compound is carbonyl compound, क्योंकि the compound gives addition product of sodium hydrogen sulfide, so compound must will be carbonyl compound. But a tolerance test नहीं दे रहा है, but positive iodoform test दे रहा है. It is clear that the compound must contains methyl ketone. कंपाउंड के पास मिथाइल कीटोन है, इसलिए ये दे रहा है पॉजिटिव iodoform टेस्ट. इसको मिटा रहा हूं, देखिए आगे देखिए.
Yes, molecular formula of compound AIC5H10O. Since it gives an addition product with sodium hydrogen sulfate. Sodium hydrogen sulfate. It gives addition product with NaHSO3, and it must gives positive iodoform test. That's why the compound must contains methyl ketone, that is COCH3 group. On vigorous oxidation, it gives ethanoic acid and propanoic acid. It means compound must will be pentan 2-one. So the compound is pentan 2-one having formula COCH3. The given compound is pentan 2-one, that is CH3, CH2, CH2, COCH3. एक कंपाउंड हुआ. ये देता है एडिशन प्रोडक्ट, दैट इज प्लस NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. ये देगा आपको CH3OHSO3Na. This is the addition product. ये है इसका addition product, and it gives positive iodoform test. COCH3, iodine and NaOH. The compound which must contains methyl ketone, when treated with iodine and NaOH, it gives a yellow PPT of iodoform, that is CHI3. It gives an yellow PPT of CHI3. CHI3 plus COONA, CH3, CH2, CH2, COONA plus NaI, H2O. This is called iodoform. A the iodoform test. On vigorous oxidation, it gives ethanoic acid and propanoic acid. On vigorous oxidation, उसका रिएक्शन देखिए, मैं बता रहा हूं. CH2, CO, CH3, that is pentan 2-one,
on oxidation, that is K2Cr2O7/H2SO4, ऑक्सीडेशन करने के बाद देता है इथेनोइक एसिड प्लस प्रोपेनोइक एसिड। ethanoic acid and propanoic acid. This is the complete reaction. That's why the given compound is pentanone, which must contains methyl two ketones. Very, very important question है बालक के। Thus, the end of this chapter with exercise questions. आप बताओ बालक कौन सा चैप्टर रिवीजन किया जाए? स्टूडेंट्स, बताओ कौन सा रिवाइज किया जाए? विनेदिता? यस सर। कौन सा चैप्टर ले लूं रिवाइज के लिए अब? सर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। वहां शुरू करें? यस सर। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से मैं शुरू कर रहा हूं। ये देखिए, आप स्टार्टिंग से मैं जा रहा हूं। अब हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। Therefore, now I am going to start new chapter, the chapter 1, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में शुरू कर रहा हूं। देखिए, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। Right from beginning, हेलो अल्केन्स। अल्केन्स, the general formula CnH2n+2। और जब भी ऐड करते हैं हम फंक्शन ग्रुप, तो उसके लिए अल्काइल ग्रुप के साथ ऐड करना पड़ता है। एक नया टर्म आ गया, अल्काइल ग्रुप। एक क्लास 11th पढ़े होंगे, द ग्रुप फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ 1H एटम फ्रॉम अल्केन इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। अल्केन से एक H एटम को रिमूव करने के बाद ग्रुप बचता है, उसका नाम होता है अल्काइल ग्रुप। द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय the group formed after a removal of 1H atom from alkene and having general formula
that is CnH2n+1. जब भी हम फंक्शन को ऐड करते हैं बालक, तो इसी अल्काइल ग्रुप में हम ऐड करते हैं. विदाउट फंक्शन ग्रुप अल्काइल ग्रुप इज मीनिंगलेस एंड वाइस वर्सा. दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. सो अल्काइल ग्रुप में ऐड करते हैं CnH2n+1. n is equal to 1. Its first member will be CH3 called मिथाइल ग्रुप. आप नोमेनक्लेचर में पढ़े होंगे 10th 11th में ही. मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, लाइक याद होगा आपको. फर्स्ट मेंबर मिथाइल ग्रुप, सेकंड होगा C2H5 इथाइल ग्रुप, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप एंड सो ऑन. और इसी अल्काइल ग्रुप में ऐड करेंगे हम हैलोजेंस ग्रुप को. हैलो ये आया है आपको हैलोजन से. हैलोजेंस represented by X means फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आप किसी को ऐड करेंगे इस अल्काइल ग्रुप में, हैलोअल्केन बन जाएगा आपका. फॉर एग्जांपल CH3, यहां से ले लिया हमने Cl, C2H5 यहां ले लिया Br, CH3 यहां ले लिया I like that. मिथाइल क्लोराइड, आइसोनेम क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोमीथेन लाइक दैट. यही है आपका हैलो अल्केन्स का इंट्रोडक्शन. सिमिलरली in haloarenes AR, arenes, AR means aromatic. इसका देखिए इंट्रोडक्शन. हैलोएरिन्स ये आया है एरोमेटिक से, जो होते हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव. बेंजीन 6 membered ring structure having alternate single and double bond, having molecular formula C6H6. यह हुआ इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला. इस बेंजीन से एक H हटा लोगे तो बनेगा C6H5. इसका नाम होगा फिनाइल. और इसी में ऐड करेंगे हम फंक्शन ग्रुप को. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर में भी जो भी हो ऐड कीजिएगा, ये मिलेगा आपको हैलोएरिन्स. C6H5Cl, Br like that, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, Cl, Br. ये हुआ इसका फंक्शन ग्रुप. ये हुआ आपको हैलोएरिन्स में. पहले वाला था हैलोअल्केन्स, ये मिला आपका हैलोएरिन्स. यह इनका इंट्रोडक्शन है हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स का. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स. इसका बता रहा हूं मैं क्लासिफिकेशन. Okay, classification of haloalkanes and haloarenes.
classification of alkanes and haloarenes. First classification is based on the number of halogen atom present in it. First classification based on number of halogen atom attached. On the basis of number of halogen atom attached, इसमें फर्स्ट है आपको मोनोहाइलोल्केन, डाइहाइलोल्केन, ट्राइहाइलोल्केन. That is X for halogens, monohalo, CH2X, dihalo, alkanes, monohaloalkanes, dihaloalkane. एंड 3 ले लेंगे CH2, CH3X, CH2X, CH2X, CHX and CH2X. That is called ट्राइहैलोअल्केन. ये डिपेंड किया नंबर पर. इसमें एक हाइड्रोजन एटम है मोनोहैलो, 2 हाइड्रोजन, डाइहैलो, 3 है ट्राइहैलोअल्केन्स. सिमिलरली इन केस ऑफ हैलोएरीन्स, यहां भी डिपेंड करता है कितने प्रेजेंट हैं एक्स एटम. X monohaloarine, dihalo, and trihaloarine. Dihaloarine and trihaloarine. So first classification is based on the number of halogen atoms attached in it. किसमें कितना हाइड्रोजन एटम अटैच है उस बेसिस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं मोनो, डाई, ट्राई, लाइक दैट. नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन, that is compounds containing sp3-hydride C-X bond. Compounds containing sp3-hydride C-X bond. वो देखिए compounds containing sp3-hydride C-X bond. Next classification, compounds containing sp3-hydride C-X bond. जिस कार्बन से लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, that is X halogens, they must be sp3-hydride. ध्यान रखो बालक, अगर कार्बन एटम जुड़ा रहता है सिंगल बॉन्ड से, दैट sp3-hydride. अगर जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड से, sp2-hydride. अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो sp3-hydride. sp3, sp2, sp.
ध्यान रखना है। अब फर्स्ट इसमें है अल्काइल हैलाइड्स या हैलो अल्केन्स के बारे में जान लीजिए। इसमें बता रहा हूं मैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन के बारे में। ध्यान रखना है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये फंक्शन ग्रुप, अगर ये कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है कॉल्ड प्राइमरी और 1 डिग्री। ध्यान रखना है, जिस कार्बन से अटैच है फंक्शन ग्रुप, अगर ये कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है ओनली 1 से, प्राइमरी, एंड दिस कार्बन एटम इज sp3 ध्यान रखना है इसमें, चूंकि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये होगा sp3। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, अगर इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी और 2 डिग्री। ये सभी कार्बन sp3 है। थर्ड नंबर, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, अगर ये कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है और ये कार्बन है आपका sp3, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी और 3 डिग्री। ये क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ध्यान रखना है, जिस कार्बन से X अटैच है, तो कार्बन शुड बी sp3। अगर इससे एक अल्काइल लगा हुआ है प्राइमरी, 2 लगा हुआ है सेकेंडरी, अगर 3 लगा हुआ अल्काइल ग्रुप तो टर्शियरी, एंड कार्बन मस्ट बी sp3। इसका ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में है एलाइलिक हैलाइड, ALLYLIC, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स एलाइलिक हैलाइड्स कहता है, एलाइलिक हैलाइड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच halogen atom is attached to an sp3 carbon atom next to carbon-carbon double bond known as allylic halides। फिर सुनिए बालक, the compounds in which the halogen atom, that is X atom, is attached to an sp3 carbon atom next to carbon-carbon double bond, it is known as allylic halide। allylic halide, जिस कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, द कार्बन शुड बी sp3 नेक्स्ट टू कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड। जिससे जुड़ा हुआ है sp3 है, बट नेक्स्ट जो है कार्बन वो जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड से। इसका टेट्रा सेटिस्फाइड कीजिए, H यहां 2H हो जाएगा, यानी और कंडेंस फॉर्म में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X, ये कार्बन आपका sp3 है, दैट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। इसी का नाम होगा एलाइलिक हैलाइड। एंड थर्ड नंबर में आपका है बेंजाइलिक सी। थर्ड नंबर बेंजाइलिक हैलाइड। जस्ट लाइक इस तरह है बालक, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है X, दैट कार्बन शुड बी sp3 and next to an benzene ring। जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, वो कार्बन तो रहेगा ही, नेक्स्ट टू अगर जुड़ा रहेगा बेंजीन रिंग से, ये दैट इज
CH2X, जिसमें एक कार्बन आपका है sp3 हाइड्राइड, that is called benzylic halide. I mean, you can say that the compounds in which halogen atom is attached to sp3 carbon atom next to an aromatic ring, then it is called benzylic halide. तब इसका नाम होगा benzylic halide. ये इसमें क्लासिफिकेशन में है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइड्राइड C-X बॉन्ड. एक और इसमें और है बालक, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइड्राइड C-X बॉन्ड. उसमें दो आते हैं, विनाइलिक और हेरोइन. वो दो टर्म उसमें आते हैं, वो देख लीजिए आप. Second classification, compounds containing, थर्ड नंबर में, compounds containing sp2 हाइड्राइड C-X बॉन्ड. इसमें दो आते हैं बालक. फर्स्ट है विनाइलिक हैलाइड. विनाइलिक हैलाइड ये कैसे बनेगा? इथीन एटम CH2 डबल बॉन्ड CH2 है. इस इथीन से एक H को रिप्लेस कर दो आप X के थ्रू. इसका नाम हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड. विनाइलिक ध्यान रखना है. एंड इसमें आपका कार्बन है sp2 हाइड्राइड. दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइड्राइड. नेक्स्ट वन इज B aryl halide. Also you can say that haloarine. इसका एक और नाम है haloarine, देख सकते हो इसको. This haloarine बनाओ बेंजीन रिंग. Alternate single and double bond exciton. Dear students, you must know that